دوستو، جس ویب سیریز کا ہم سب کو انتظار ہے وہ ویب سیریز آ گئی ہے۔ یہ منی ہائسٹ کا اگلا پارٹ ہے۔ اب ہم آپ کو اس کی کہانی بتاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ برلن ہے، اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت ہے جو کہ اس کی ایک تیسری بیوی ہے، جو اس کی محبت ٹھکرا چکی ہے اور اسے چھوڑ کر کسی اور آدمی کے پاس چلی گئی ہے۔ وہ سب کچھ اس کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ سب چوری کرنے جا رہے تھے۔ یہ برلن کے سنہرے دنوں کی کہانی ہے۔ یہ کیلا ہے، یہ الیکٹریکل انجینئر ہے اور چوری چھپے شرماتی ہے۔ یہ روئے ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ تالے توڑے اور اس کی خاصیت سلاخوں کے پیچھے جانا ہے۔ برلن کو اپنا گوڈ فادر مانتا ہے، برلن اسے اپنا پالتو کتا مانتا ہے۔ یہ ڈیمن ہے، وہ پیشے کے لحاظ سے پروفیسر ہے۔ یہ اپنے فارغ وقت میں چوری کا منصوبہ بناتا ہے اور یہ ایک باصلاحیت اور ماسٹر مائنڈ ہے۔ یہ بروس ہے، جو ہر حال میں آل راؤنڈر ہے۔ یہ جینے کا فن بخوبی جانتا ہے۔ مسٹر اینتھونیو دیواروں کے محل میں جاتے ہیں۔ برلن اسے سرچ وارنٹ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم پولیس ہیں اور اپنے گھر کی چیکنگ کرواؤ۔ برلن اسے چیکنگ کروانے کا کہہ کر ڈراتا ہے کہ اگر اس کا ساتھ نہیں دے گا تو اسے کم از کم 9 سال تک اندر جانا پڑے گا۔ اس کے لاکر میں جا کر ایک 500 سال پرانا ایک کپ اٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ زندہ ہیں اور پولیس والے نہیں ہیں، کھانے کی میز پر پیالے آتے اور جاتے رہیں گے۔ ایک آدمی وہاں سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے پولیس والے نہیں لگ رہے، براہ کرم اپنا بیج اور شناختی کارڈ دکھائیں۔ وہاں پر برلن آتا ہے۔ وہ اس شخص سے کہتا ہے اپنا موبائل میز پر رکھو، اور اس کے موبائل کو بندوق سے گول کے اڑا دیتا ہے اور اسے اپنی بندوق دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا بیج ہے، اور آدمی لائن پر ہی تھا۔ پھر وہ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنا شناختی کارڈ نکال لیں کہ اگر کوئی ان کی FIR درج کروائے تو وہ جانتے ہوں گے اس کا گھر کہاں ہے۔ پھر وہ آدمی کو باہر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کے سامنے ہیرو بن رہے تھے۔ گرل فرینڈ کے آدمی نے اس کے سامنے التجا کی۔ پھر برلن کہتا ہے کہ محبت بہت بڑی ہے، کسی کی جان گنوانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر وہ اس سے کچھ کہے بغیر چلے جاتا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد سب اپنے اپنے بیس میں چل جاتے ہیں۔ وہ اپنے بیس بدل کر برلن کے ایک ہوٹل میں چل جاتے ہیں۔ ایک نئے ممبر سے سب کا تعارف کرواتے ہیں۔ اس کا نام تھا کیمرن۔ یہ طوفانی لڑکی ہے جس کی زندگی نے بہت گہرے زخم دی ہے، اور پہلی نظر میں روح اسے پسند کرتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور برلن جانتا تھا کہ روح کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اسے ایک سیکنڈ میں اس کا احساس ہو جاتا ہے۔ پھر برلن کہتا ہے کہ ہم سب یہاں چوری کے ارادے سے آئے ہیں۔ یہ کب 10 دن پہلے میں نے چوری کیا تھا، جس کی قیمت 40,000 یورو ہے، اور ہم اب اس کی قیمت 40 ملین یورو میں بیچیں گے۔ ڈیمن ایک بار پھر 37 ملین یورو بنانے والا ہے۔ اب وہ اس لاکھی کپ کو توڑنے لگتے ہیں۔ اس ٹوٹے ہوئے پیالے کی مدد سے یورپ کا شاہی خاندانوں کے زیورات امونیم کلورائڈ میں ڈبو دیا جاتا ہے تاکہ اس کی چمک خراب ہو جائے اور وہ بوڑھے لگنے لگے۔ پھر وہ پیرس آ جاتے ہیں۔ وہ ایک پرانے چرچ جاتے ہیں اور وہاں کے گوڈ فادر سے ملتے ہیں۔ برلن کہتا ہے کہ میں پروفیسر ستاتا ہوں اور پولی ٹیکنک یونیورسٹی آف سلمان سے ان کو یہاں بلانے کے لیے آیا ہوں، جہاں انہوں نے آن لائن ریسرچ بھی کی تھی، اور برلن اور اس کے سارے گینگ کے بارے میں انہیں 600 سے زیادہ آرٹیکلز بھی ملے تھے، اور یہ سب کیلا کا جادو تھا۔ چرچ کے فادر نے اندر 2 گنڈے بھی رکھے ہوئے تھے۔ یہ دونوں چرچ میں اپنی بہتری کے لیے آئے تھے اور وہ کچھ دنوں بعد رہا ہونے والے تھے۔ وہ پھر گوڈ فادر کو کچھ دستاویزات دکھاتے ہیں جس کے مطابق اس چرچ سے بہت پہلے یہاں ایک اور چرچ ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ فادر کہتے ہیں کہ میرا چرچ 1240 میں بنایا گیا تھا، اور ان دستاویزات کے مطابق یہاں چرچ کے وجود کے بعد 5ویں صدی میں، لیکن انہوں نے فکر کو قائل کر لیا۔ آئی کہتے ہیں کہ آپ جہاں کھڑے ہیں وہ پیرس ہے، سب سے قدیم چرچ ہے، اور اس کے نیچے بہت سے خزانہ دفن ہوا ہے۔ پھر گوڈ فادر انہیں چرچ کو دیتے ہیں، انہیں تہہ خانے میں لے جاتے ہیں اور وہ مشین سے چیک کرتے ہیں۔ وہاں 16 فٹ نیچے کوئی چیز دبی ہوئی تھی۔ ان سب کا منصوبہ یہاں اشارہ کیا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک کو کھودنا پڑے گا۔ راستہ پیرس کی ان سرنگوں سے گزرتا ہے جہاں وہ پیرس کے کسی بھی کونے میں جا سکتے ہیں۔ پھر ڈیمن نقشے میں وضاحت کرتا ہے ہمیں چرچ سے اس جگہ پر پہنچنا ہے، پیرس کا سب سے بڑا نیلام گھر، جہاں 34 مختلف شہروں سے آنے والے شاہی گھروں کے جواہرات ہونے جا رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ کون سا ایک دن میں تمام زیورات پہنچیں گے۔ برلن نے اپنے ہوٹل میں لے کے آتا ہے۔ بالکل سامنے اس نیلام گھر کا ڈائریکٹر صرف اس کے پاس تھا، جو اس کے سامنے گھر کے فلیٹ میں رہ رہے تھے، اور برلن کہتا ہے ہم سب اس کے گھر جائیں گے اور اچھے کپڑے پہن کے جائیں گے تاکہ یہ ہم پر شک نہ کرے۔ روح کی کیمرن پر نظریں تھی اور وہ برلن سے کہتا ہے کہ مجھے محبت ہو گئی ہے اسے۔ برلن آگے سے کہتا ہے کہ تمہیں جو اس کی آنکھوں میں چمک نظر آ رہی ہے نا، وہ بس میں ہی جانتا ہوں، یہ لڑکی مینٹل ہاسپٹل سے بھی ہو کر آئی ہے، اب تمہیں بس اپنے کام پر نظر رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ رایا اپنے پاؤں پر ٹیٹو کو سمجھتا ہے۔
फिर वो नीलाम घर देखते हैं। डायरेक्टर जिसका नाम मार्क और उसकी बीवी थी। ब्रोस उसे अपने साथ घर से निकल जाता है, इसकी इस पर नजर रखने के लिए इसका पीछा करता है। राय और कैमरन जोड़े के रूप में उनके दरवाजे के बाहर जाते हैं, इसे खोलते हैं और वहाँ कैला आ जाती है। फिर वो सब अंदर चले जाते हैं। फिर कैला और कैमरन लिफ्ट के ऊपर जाते हैं और वो सीढ़ियाँ चढ़कर अपने अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं। जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो उनके नेबर्स इमारत में अंदर और ऊपर आता है। आने से पहले सिक्योरिटी बंद दरवाजा खोलना पड़ता है, फिर वो उसके पास आएंगे। इससे पहले हम दरवाजा खोलने घर में दाखिल हो, वो अंदर जाते हैं और फिर वो अपने गैजेट इस्तेमाल करते हैं। अंदर से छोटे छोटे कैमरे निकालते हैं और ऐसा लगता है इस घर में एक छोटा कुत्ता भी है जो गेंद से खेलना बहुत पसंद करता है। फिर वो सब मुख्तलिफ जगहों पर कैमरे लगाना शुरू कर देते हैं। वे इस घर में कोई जगह नहीं छोड़ते, वो एक साथ चलेंगे जहाँ कैमरे नहीं होंगे। इसे खाना भी खिला रहे हैं जब इसने दरवाजे की आवाज सुनी, ताला खुलने की आवाज है और वो सब छुप गए। इनका पड़ोसी वहाँ जाता है जो कि अपने कुत्तों को लेके आया था ताकि मार्क के कुत्तों को भी उसके साथ चहलकदमी पर लेके जा सके, लेकिन माँ का कुत्ता राय और कैमरन के साथ है। बैठा होता है तब राय ने गेंद को बाहर फेंक दिया और जैसे ही गेंद लेने बाहर जाता है इसके पड़ोसी उसे वहाँ से अपने साथ ले जाता है और चला जाता है। सबको छोड़ने के बाद हम अब रात के वक्त वहाँ से निकलते हैं। बर्लिन मार्क के घर की निगरानी कर रहा था। फिर मार्क की बीवी उठती है और मौसीकी बजाती है। बर्लिन रक्स शुरू करता है। वो बहुत परवाह करता है कि मैं देख रहा था। तब से वो लिबास पहनकर तैयार हो जाती है। इसे देखने के लिए इसे दोबारा कहाँ जाता है। बर्लिन इतनी रात को कहाँ जाता है। होटल से बाहर आता है और इसका पीछा करता है। वो एकदम इसके पीछे करने लग जाता है। मार्क की बीवी इस बार मार्क की बीवी के पास एक गिटार था। बर्लिन उसे देखता है, वो गाना गाती है। गाना गाते हुए ऐसे लग रहा था जैसे से पहली नजर में इससे प्यार हो गया हो। फिर वहाँ से निकलने के बाद सुबह तक इसका पीछा करता है कि वो महसूस करे कि ये परिंदा सड़क पर पिंजरे में कैद है। रात को दोबारा वहाँ से आजाद रहना चाहता हूँ। वो मुड़कर वापस मार्क के साथ बिस्तर पर चली जाती है। बीवी के जाने के बाद वो सो जाता है। आज थोड़ी देर में पहली बार बर्लिन भी अच्छा लगता है। हम ब्रोस को अगले मंजर में देखते हैं और कैला चर्च के नीचे तय खाने में गरा ब्रोस को खोदती है और एंटी कप को दफन करती है। कैला को कितार में खड़ा करता है लेकिन कैला इसे मारती है। वो कहती है कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मुस्तकबिल में इस बात को जहन में रखना। कुछ अरसे बाद डीमन वहाँ बर्लिन आता है, पूछता है कि सारी रात कहाँ थे तुम। वो कहता है कि मैं एक औरत से मिला था। फिर इस रात कैली डेमन का इसका सारी बात बताता है और इससे इतना मुतासिर हुआ है कि मैं सब कुछ उसके बारे में जानने लगता हूँ और ये काम सिर्फ और सिर्फ डेमन की जरूरत के तहत हो सकता है। फिर डेमन ये कहता है कि हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना कुछ किया। जिस आदमी को हम लूटने जा रहे हैं तुम उसी की बीवी से मुतासिर हो गए हो, इससे एक साथ 2 झटके देने हैं। बर्लिन से कहता है कि मैं पूरी मंसूबाबंदी को खतरे में डाल सकता हूँ और मैं तैयार हूँ और तुम्हें भी मैं डाल सकता हूँ। फिर वो सब वहाँ पे फादर के सामने आते हैं। वही कप इन्हें जेरे जमीन से निकाल कर देखते हैं। फादर कप निकाल कर दिखाते हैं और बर्लिन की आंखें खुली रहती हैं। हमें बताया जाता है कि हमारे पास खोदने के लिए एक हफ्ता भी नहीं है। अगले दिन वही बार बर्लिन राय के हवाले से बर्लिन के बाहर कैली का इंतजार करता है। राय को बताता है जब मैं अंदर जाऊंगा चंद मिनट बाद तुम मेरे पुराने दोस्त बनकर अंदर आ जाना और हम वहाँ पे मिलेंगे। कैली के आने के बाद मिलते हैं। फिर बर्लिन एक किताब लेकर अंदर चल जाता है। वो कैली के साथ वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और जाकर बैठता है। कैली से कहता है कि मैंने कल रात तुम्हें इस बार में गाना गाते देखा और मैं तुमसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। मैं तुम्हें देखकर अंदाजा लगा रहा था कि तुम्हारी प्लेलिस्ट में कौन कौन से गाने होंगे। बर्लिन कहता है कि आप सही हैं या नहीं, हम आपको सिर्फ एक नहीं 2 गाने सुनाएंगे। सीधो मुझसे वाला जेतू अड्डी के लिए है और मैं लेजू हूँ जो दूसरा मित्रा। छतरी ऊपर है। कमली कहती है क्या बात है। वो दोनों ठीक है इसलिए मैं इस पर रो पड़ा। वो अदाकारी करते हुए वहाँ आता है और बर्लिन के आते ही 2-4 पारियां ले लेता है। फिर बर्लिन कहता है कि तो अब हम ठीक है, चले हम यहाँ से, शायद आपका किसी और वक्त आपका गाना सुनने का मौका मिले। फिर वहाँ से चले जाते हैं। बर्लिन राय को बताता है कि वो अदाकारी से बहुत ओवर रेटेड थी। फिर वो करीबी मेज पर बैठ जाते हैं। बर्लिन जाना ये देखता है कि चाहे वो मुर्केडिस की तरफ देखे या ना देखे, वो देखे बगैर सीधी बाहर निकल जाती है और वो कहती है कि इससे बर्लिन का दिल टूट जाता है। ये क्या है, हमसे कोई गलती हुई है क्या? उन्होंने हमें अच्छा नहीं समझा। हमने 3-4 बार तुमने हमें इतनी ओवर एक्टिंग की है कि वो हमें अच्छा नहीं समझ रही। दूसरी तरफ डेमन ब्रोस, सीला और कैमरो को चर्च के नीचे दफन कर दिया जाता है। खाने से एक सुरंग है, वहाँ कई लोगों के कंकाल पड़े हैं और वो सुरंग थी जिसके बारे में हमने लोपिन के बारे में बात की थी। आपको वेब सीरीज में बताया गया कि उन्होंने नक्शे के मुताबिक सुरंग में आगे बढ़ना है, नीलाम घर तक जाना है। वो एक रास्ता तलाश करते हैं। फिर वो लेजर के सीधे रास्ते पर चलते हैं। बर्लिन इस सिमत में खुदाई करता है। सैमे कैली के प्रोफाइल को देखकर रोने लग जाती है। सीसीटीवी के जरिए इसके घर पर नजर रखी जा रही थी। फिर राय बर्लिन को बताता है कि मियां बीवियों के दरमियान लड़ाई हो रही है। कैली को ओपरा जाना है लेकिन उसका शोहर वहाँ नहीं जा रहा। चाहता है कि आज उसका शेड्यूल बहुत
मसरूफ है। फिर बर्लिन कहता है कि मैं इसके साथ जाऊंगा, मैं राय के पास जाऊंगा, इसके जूते पॉलिश करो, और देखता है कि मार्क घर पर आ गया है और कैली वहाँ से चली गई है। फादर डीमन की तरफ से चर्च की दूसरी तरफ है, उनसे मिलने जाता है और कहते हैं कि मैं इस कप को स्पेन जा रहा हूँ, मैं इस कप को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी जाकर डीन को दिखाना है। डीमन का कहना है सिक्योरिटी की वजह से ये हम तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। फादर जाकर वो कप डीन को दिखाना चाहते हैं, इसलिए उनका रवैया बदल जाता है और कहता है कि ये मेरा चर्च है और मैं यहाँ का फादर हूँ। कहता है कि मुझे अपना कप चाहिए, क्यों नहीं दे सकते, लेकिन ये उसका हक है। फादर कहते हैं कि मैं चला जाऊंगा, मैं सुबह 8:30 बजे की फ्लाइट है। डीमन ये बात बर्लिन को बताता है, लेकिन उससे अपने टक्सिडो पहना हुआ था और कैली के साथ डीमन जाने के लिए तैयार था। डीन कहता है कि इस कप को देखो और पहचानो और इसे लेकर आओ। फैसला नहीं कर पा रहा था कि यार उसने कई दिनों की मेहनत खाक में मिल जानी थी और मिलने जा रही थी। दूसरी तरफ वो कैली की थी, अब वो दोनों जिंदगी में दाखिल हो रहे थे। पैसे या मोहब्बत में से इसको किसी एक का इंतखाब करना होगा। फिर वो राय से कहता है कि आसमान और जमीन को मिला दे लेकिन वो हम कब वापस रखते हैं, आपको एयरपोर्ट के बाथरूम में इसकी जन्नत मिलेगी, टिकट क्यों ना बिक जाए। फिर वो होटल, अब वो बाहर आता है और कैली को कहता है कि दूसरी अब हम यहाँ पे पहले